میرے یار کی شادی ہے، میرے یار کی شادی ہے۔ اوفو ایمان چپ کر جاؤ، کان کھا لیے ہیں تم نے؟ شادی شادی کی رٹ لگا کر بابا نے سن لیا نا تو تمہاری خیر نہیں۔ پتہ بھی ہے کہ بابا کو گانوں سے کتنی نفرت ہے، لیکن سیام آپی مجھے تو گانوں کی اچھی خاصی پریکٹس کرنی ہے۔ آخر کو آپ کی شادی بھی تو نزدیک آ رہی ہے نا، میں تو ڈھولک بجاؤں گی۔ اب بھائی تو ہے نہیں ہمارا، تو آپ کی شادی پر ہی اپنے دل کے ارمان پورے کروں گی۔ اچھا ٹھیک ہے کر لینا، اب چپ کر جاؤ۔ ارے انیلا یہ بچیاں کہاں ہیں؟ بلاؤ انہیں، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے، جلدی سے آ جائیں۔ سب کھانا اکٹھے کھانا شروع کرتے ہیں۔ جی خان میں ابھی بلاتی ہوں انہیں۔ ایمان سیام جلدی آؤ بیٹے، بابا ناراض ہو رہے ہیں، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ جی ماما جان بس آ گئی ہیں۔ السلام علیکم بابا جان، کیسے ہیں؟ ارے واہ میرے جگر کے ٹکڑے آ گئے۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، جلدی آؤ کھانا شروع کرو۔ بابا جان ہم تایا جان کے گھر کب جائیں گے؟ ایمان کھانا تو ختم کر لو بیٹا، پھر سوال جواب کر لینا بابا سے۔ اوکے ماما۔ بیٹا کل تیار رہنا سب، ہم صبح نکل جائیں گے اور انشاءاللہ دوپہر تک پہنچ جائیں گے، اور دیر مت کرنا ورنہ بھائی صاحب ناراض ہوں گے۔ اوکے بابا جان۔ لیکن دلاور صاحب میں نے تو سوچا تھا کہ عید پر چلیں گے گاؤں، آپ کل کا بول رہے ہیں؟ ارے انیلا بھائی صاحب نے کوئی ضروری بات کرنی ہے، فوراً بلایا ہے۔ او اچھا چلیں ٹھیک ہے، پھر جلدی سو جانا، صبح جلدی اٹھنا ہے۔ ہائے اللہ اپی میں بہت خوش ہوں۔ کیا آپ بھی خوش ہیں؟ کس بات پر؟ ارے گاؤں جانے کے لیے۔ او اچھا ہاں خوش ہوں۔ چلو چلو بچوں جلدی آؤ، گاڑی تیار ہے، جلدی بیٹھو گاڑی میں۔ آج کی صبح کا آغاز دل کو بہت بھا رہا تھا، لہلہاتے کھیت، ہرے بھرے سے سورج کی کرنوں کا نظارہ آنکھوں کو ٹھنڈک بخش رہا تھا۔ ارے اب بھی سونے دینا، ایمان اٹھو، گاڑی میں کیوں سو رہی ہو؟ دیکھیے بابا جان سب سے زیادہ یہ ہوش تھی اور اب دیکھیں سو رہی ہے۔ ہاں 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 سفر دور کا ہے، تم بھی سو جاؤ میرا بیٹا، جب گھر آئے گا تو اٹھا دوں گا۔ ٹھیک ہے بابا جان۔ تقریباً 8 گھنٹے بعد گاڑی حویلی میں داخل ہو رہی تھی۔ بیٹی اپنے چھوٹے بیٹے دلاور خان کو دیکھ کر بہت خوش ہو رہی تھی۔ بڑے بھائی ہاشم خان اور ان کی بیوی نغمہ بھی بہت پرجوش دکھائی دے رہے تھے۔ السلام علیکم تایا جان، تائی جان۔ وعلیکم السلام، جیوندی رہو میری بیٹی۔ بیجی آپ کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں بیٹا، بس بوڑھی ہو گئی ہوں تو اتنا زیادہ چلا پھرا نہیں جاتا، بہت جلدی سے کھانا لگاؤ، بچے بہت دور کا سفر کر کے آئے ہیں، پھر آرام کریں گے، اور کمرے بھی صاف کروا دینا۔ جی اماں جی آپ فکر نہ کریں۔ انیلا آؤ میرے ساتھ کچن میں چلتی ہیں۔ جی بھابھی۔ نغمہ چل میں چلتی ہوں۔ ساتھ کھانا کھانے کے بعد سب آرام کرنے چل گئے۔ آپی سیام یہ حسام اور ارسام نظر نہیں آ رہے، کدھر ہیں؟ مجھے کیا کہاں پتہ ہو؟ ایمان آ جائیں گے، چلو تم آرام کرو۔ ٹھیک ہے آپی۔ نغمہ ذرا ہاشم اور دلاور خان کو دونوں کو میرے کمرے میں بھیجو، اور نیلا کو بھی ساتھ لے آنا، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ کچھ دیر کے بعد دونوں بھائی اپنی اپنی بیویوں کے ہمراہ بیجی کے کمرے میں موجود ہیں۔ جی بیجی آپ نے ہمیں بلایا، خیریت ہے نا؟ ہاں ہاں میرے بیٹوں، میں چاہتی ہوں کہ تم دونوں کو ہری وصیت تمہارے باپ کی یاد کروا دوں۔ میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، میں اپنی آنکھوں سے اپنے پوتی پوتوں کو ایک ہوتے دیکھنا چاہتی ہوں۔ ارسام اور اسام کا نکاح، سیام کا نکاح جو بچپن میں تمہارے باپ نے ایمان اور سیام سے کر دیا تھا، میں چاہتی ہوں اب باقاعدہ سے رخصتی بھی کر دی جائے۔ مجھے ڈر ہے میرے بچے بڑے ہو کر کہیں اور نظریں نہ دوڑانے لگ جائیں۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں بیجی، تو پھر ایسا کرو میرے بچوں، یہ جو عید سے پہلے جمعہ آئے گا اس جمعہ کو رخصتی کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے بیجی، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، تو پھر تیاری شروع کرو، اور انیلا تم بچوں سے کہو آج ہی مارکیٹ جا کر خریداری شروع کریں، اور نغمہ تم لڑکوں سے کہو ایمان سے ہم کو بھی ساتھ لے جائیں۔ جی اماں۔ ماما آپ کے کیا کہہ رہی ہیں؟ میرے پیپر ہونے والے ہیں اور ابھی تو 18 سال کی بھی نہیں ہوئی، آپ کو میری رخصتی کی فکر بھی پڑ گئی؟ اور اسام جو ایمان سے ملنے کے لیے ہی آ رہا تھا، ایمان کی بات سن کر رک گیا۔ میں کچھ نہیں جانتی ایمان، یہ بیجی کا حکم ہے۔ سنا تم نے، یہ سارے کام ہو جائیں گے، اور ارسام تو تمہاری ہر خواہش کا احترام کرتا ہے، وہ تمہیں یونیورسٹی چھوڑنے جایا کرے گا۔ بڑی بہن سے کچھ سیکھ لو، اس نے تم سے کچھ نہیں کہا، وہ تو صرف تم سے 2 سال بڑی ہے۔ ٹھیک ہے ماما۔ حسام خان اور ارسام خان جو ہاشم خان کی اولاد تھے، دونوں اس وقت کھیتوں میں موجود تھے۔ ارسام کو خاموش پا کر حسام نے پوچھا کیا بات ہے ارسام، تم بہت چپ سے ہو بھائی، کیا آپ اس بچپن کے نکاح سے خوش ہیں؟ کیوں تم خوش نہیں ہو؟ ایسی بات نہیں ہے بھائی، میں تو بہت خوش ہوں، بلکہ میں تو ایمان سے عشق کرتا ہوں، لیکن ایمان ابھی پڑھنا چاہتی ہے، تو کیا ہوا پاگل تم ہو نا اس کو سپورٹ کرنے کے لیے۔ چلو گھر چلتے ہیں، میرا تو دل تڑپ رہا ہے سیام سے ملنے کے لیے۔ اوہو
वाह भाई वाह, वो छुपे रुस्तम हैं आप। हसाम जो सयाम के कमरे में दस्तक देकर अंदर आ चुका था। सयाम दुपट्टे के बगैर खड़ी थी, जिसे यूं देखकर हसाम अपने जज्बात पर काबू ना रख सका और सयाम को खींचकर अपने सीने से लगा लिया। क्या कर रहे हैं आप? हसाम छोड़ें, ईमान आ जाएगी, कोई देख लेगा। हसाम ने सयाम के होंठों को अपने होंठों की गिरफ्त में ले लिया और दीवाना वाला अपनी शिद्दतें लुटाने लगा। सयाम ने जोर से एहसाम को धक्का दिया, जिस वजह से हसाम को गुस्सा आ गया। गुस्से में हसाम पागल हो चुका था। आगे बढ़कर इसने सयाम को इसके बालों से जकड़ कर बेड पर गिरा दिया। हसाम, क्या हो गया आपको? 2 दिन बाद हमारी बारात है, प्लीज़ अभी से ऐसा मत करें, प्लीज़। क्यों ना करूं, बीवी हो तुम, मेरे शरई हक है तुम पर। सयाम उठने ही लगी थी। हसाम इसके ऊपर खुद को झुका चुका था और आज सारा हक शिद्दत समेत वसूल कर चुका था और सयाम को रोता छोड़कर बाहर चला गया। सयाम, आप ही किधर हैं? आप ईमान की आवाज़ सुनकर सयाम ने संभलना चाहा, लेकिन संभल ही ना पाई। और अब ये क्या हुआ है आपको? आपकी शर्ट क्यों फटी है और ये होंठों को क्या हुआ है आपको? ईमान बुरी तरह रोए थे। मैं अम्मी को बुला कर आती हूँ। नहीं ईमान, खुदा के लिए, खुदा का वास्ते, प्लीज़ अम्मी को जान को मत बताना प्लीज़। वो हशाम आया था और बीवी होने का हक वसूल कर गया। लेकिन अभी 2 दिन बाद तो बारात थी हमारी। दरवाज़ा लॉक करना जो भूल गई थी। हसाम भी दरवाजे पर दस्तक देकर अंदर चला आया और अंदर के मनाज़र देखकर इसकी आंखें दंग रह गईं। सयाम भाभी, क्या हुआ आपको? और ये आपकी हालत ऐसी किसने की? ईमान और हसाम को देखकर इस पर फट पड़ी। और तुम भी आ गए अपना हक वसूल करने? बड़ा भाई तो बीवी से हक वसूल करके चला गया, अब आप मुझसे वसूल करने आए हैं? शर्म नहीं आती आपको? 2 दिन तक इंतज़ार नहीं कर सकते हैं? हमारी रुखसती थी 2 दिन बाद। हसाम भाई ऐसे कैसे कर सकते हैं? तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? मैं अभी पूछता हूँ भाई से, उन्होंने ऐसा क्यों किया? हसाम गुस्से से घर से गाड़ी लेकर निकला था और बहुत ही रश ड्राइविंग कर रहा था। शराब भी पी रखी थी। मामा, आपने भाई को देखा है? नहीं हसाम, जाओ देखो तुम्हारा भाई है कहाँ। बाजार भी जाना है हमने, बुला कर लाओ इसको। मैं अभी कॉल करता हूँ इसको, रिंगिंग। हेलो भाई, किधर हैं आप? और आप ये नहीं, आपने ये क्या कर दिया सयाम भाभी के साथ? अरे छोटे, अपनी बीवी के साथ ही किया है ना। कौन सा तुम्हारी बीवी के साथ किया है? शट अप भाई। और आपने शराब पी रखी है और गाड़ी भी ड्राइव कर रहे हैं? खुदा का वास्ता, गाड़ी एक साइड पर रखें और मुझे अपनी लोकेशन सेंड करें, मैं अभी आता हूँ 2 मिनट के अंदर अंदर। हसाम अपना एक्सीडेंट करवा चुका था। एक्सीडेंट की आवाज़ से हसाम के उसान हत्ता हो चुके थे और इसके पास लोगों ने जल्दी से मदद की और हसाम के मोबाइल से फ़ौरन हसाम को बताया कि वो फलां जगह पर है। हसाम के सर पर गहरी चोट आई थी। घर के सारे अफराद जो हॉस्पिटल में जमा थे, डॉक्टर फ़ौरन ऑपरेशन करके फारिग हो चुके थे। अरसाम खान, आपको हौसला रखना पड़ेगा। हसामिन खतरे से तो बाहर है, लेकिन कोमा में चले गए हैं। इनको कब होश है अल्लाह बेहतर जानता है। 3 साल, 2 साल या फिर 6 माह बाद भी लग सकते हैं। अरसाम नज़दीक घर के ईमान के अरसाम के साथ रुखसती सयाम ने जिद करके ईमान के अरसाम के साथ रुखसती तो करवा दी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो दोनों हमसफ़र होने के बाद वजूद एक दूसरे से दूर रहें और हसाम जैसी गलती करें। आप भी अभी तक सो रही हैं, उठ जाएं। माथा छूने पर ईमान को एहसास हुआ कि आपी को तो तेज़ बुखार है। अब भी उठ जाएं, आपको डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ। और शाम और उठें आप भी, आपी को बहुत तेज़ बुखार, आप आपी बुखार में तप रही हैं, इन्हें हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। ठीक है ईमान, तुम नाश्ता करवाओ आपी को, मैं तब तक रेडी हो जाता हूँ। थोड़ी देर बाद तीनों हॉस्पिटल में मौजूद थे। डॉक्टर साहबा, क्या हुआ आपको? मुबारक हो आपको, आप माँ बनने वाली हैं क्या? अरे आपको खुशी नहीं हुई? डॉक्टर ने जल्दी से बात संभाली। अरे नहीं, डॉक्टर ईमान ने जल्दी से बात संभाली। अरे नहीं डॉक्टर साहब, बहुत खुशी है। डॉक्टर ने ज़रूर हिदायत तो मेडिसिन लिख दी थी। हम रोती हुई गाड़ी तक आई। जल्दी से गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। ईमान, क्या हुआ भाभी को? शाम आप भी माँ बनने वाली हैं, आप क्या होगा? कौन यकीन करेगा मेरा ये कि बच्चा शाम कहाँ है? मेरा दिल चाह रहा है उसको ख़त्म कर दूँ। आप पागल हो चुकी हैं। और क्या करूँ तो? और क्या करूँ ईमान? सामने मेरी इज़्ज़त दो बड़ी की करती है। दुनिया वाले यकीन नहीं करेंगे। ये बच्चा आसाम का है भाभी, हमें यकीन है आप पर। ये बच्चा भाईजान का है, आप फिक्र मत करें, हम आपके साथ हैं। और दुआ करें भाई को जल्दी होश आ जाए। अभी घर चलते हैं और किसी को भी बात बताइएगा, ठीक है? ईमान, तुमने नोट किया सयाम बहुत चुप सी हो गई है। मेरे बच्चे को नज़र लग गई है, आज मैं इसके पास आऊँगी। तुम जाओ अपने रूम में, अरसाम इंतज़ार कर रहा होगा। जी मामा, ये मेडिसिन पड़ी है, आप याद से आप ही को दे दीजिएगा। अब मैं चलती हूँ, ठीक है बेटा तुम जाओ। अनिला बेगम जिसको सयाम को उठाकर मेडिसिन दे रही थी, पास पड़ी गायनो फाइल उठाकर देखने लगी और हैरत से आंखें फटी की फटी रह गई। सयाम, तुम माँ बनने वाली हो? बगैरत, किसका बच्चा है ये? जल्दी बताओ। अनिला सयाम के मुंह पर थप्पड़ मार रही जा रही थी। ईमान और सयाम भी शोर सुनकर भागे हुए आए और माँ के हाथ में फाइल लेकर परेशान हो गए। माँ मत करें, ये बच्चा भाई शाम का है। मैं कैसे मानूँ? आपके मानने से या ना मानने से क्या होगा? छोटी अम्मी, हम गवाह हैं इस दिन के जब श्याम भाभी के कमरे में आए थे और इसी दिन बाइक का एक्सीडेंट भी हो गया। और आप प्लीज़ चुप कर जाएं, मुझे माफ़ कर दो, मेरी बेटी, मैंने तुम पर शक किया। मामा प्लीज़ आप माफ़ी मत मांगे,
बस छोटी अम्मी आप हमारी मदद कर रहे हैं। हम भाभी को लेकर लाहौर शिफ्ट होना चाहते हैं ताकि 9 माह तक उधर रह सकर भाभी की डिलीवरी के बाद हम आ जाएंगे। ठीक है, तुम लोग तैयारी पकड़ो, क्योंकि सैम के वजूद में होने वाली तब्दीली से सबको शक पड़ जाएगा। तुम लोग कल ही जाने की तैयारी करो और मैं बेजी और बाकी से घर वालों से बात करती हूँ। अगले दिन सभी टीवी लाउंज में मौजूद थे और दिलावर खान और बेजी, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। आप सब तो जानते हैं कि असम के एक्सीडेंट के बाद सैम ज़हनी दबाव का शिकार है। वैसे भी लाहौर में हमारा कारोबार भी है। 6 माह से हम इधर हैं तो पीछे से कोई देखने वाला नहीं है। मैं चाहती हूँ कि सैम खान और ईमान और सैम कुछ माह के लिए लाहौर चले जाएं। सैम भी ज़हनी दबाव से आज़ाद हो जाएगी। काम में खुद को मसरूफ़ करके कम दबाव लेगी। ये तो तुम ठीक कह रही हो नीला। दिलावर और हाशिम खान ने नीला की हाँ में हाँ मिलाई और फ़ौरन ही अरसाम को देखने लगे। अरसाम ने फ़ौरन हाँ में हाँ मिलाई और जाने की तैयारी करने लगे। यूँ फिर अरसाम से ईमान और सैम को लेकर लाहौर चला गया। ठीक 9 माह बाद अल्लाह ने सैम को चाँद से बेटे से नवाजा था। सैम दिन रात रो रो कर अल्लाह से दुआएं मांगती थी सैम को होश आ जाए। रमज़ान मुबारक की 27वीं रात को सैम ने रो रो कर अल्लाह से अपनी दुआ कबूल करवा ली थी। अरसाम के मोबाइल पर हाशिम का फ़ोन आया था, जिसने बताया कि सैम को होश आ गया है, सब घर चले आओ। सब बहुत खुश थे, लेकिन सैम का दिल बुझ चुका था। सैम का बेटा 2 माह का हो चुका था, जिसका नाम इसने एराज खान रखा था। अरसाम वापसी की नवीद सुनाई और घर चलने को कहा। ईमान अपने भांजे को गोद में लेकर बहुत खुश थी। बच्चे को लेकर जब सब हवेली में दाखिल हुए तो दिलावर खान और हाशिम खान हैरान हो गए। अरसाम खान से पूछने लगे, अरसाम, ईमान की बच्चा किसका है? दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। सैम ने आगे बढ़कर अपने बच्चे को गोद में भरा और बोली कि ये मेरा बेटा है बाबा जान। दिलावर खान जो गुस्से और तैश में आगे बढ़े ही थे कि अरसाम खान ने रोक लिया। हाशिम खान गुस्से में बंदूक उठा लाए। नालायक, आज हम तुमको गोली मार देंगे। इसका नाजायज़ बच्चा उठा लाई हो। बस बाबा जान, बहुत हो गया। अब कोई भी सयाम भाभी को कुछ नहीं कहेगा। ये बच्चा नाजायज़ नहीं है, ये हसाम भाई का बच्चा है। जिस दिन भाई का एक्सीडेंट हुआ था इस दिन भाई भाभी से मिलने इनके कमरे में गए थे। रुखसती से ठीक 2 दिन पहले सयाम फूट फूट कर रोने लगी। इसलिए हम सयाम भाभी को लेकर लाहौर चले गए थे बाबा, क्योंकि हम भाभी सच कह रही हैं, क्योंकि कोई इनका यकीन भी नहीं करेगा। हमें माफ़ कर दो सयाम बेटी, हम तुम्हारे मुजरिम हैं। नहीं बड़े बाबा, माफ़ी मत मांगिए। नगमा बेगम बेताबी से आगे बढ़ी और एराज खान को उठाकर प्यार करने लगी। इसका नाम क्या रखा है सयाम? इसका नाम एराज खान रखा है मैंने। अरसाम डॉक्टर का फ़ोन आया था, बोल रहे थे कि आज हसाम को छुट्टी हो जाएगी। अभी घर आई है, हम शाम को फिर चलेंगे हसाम को लेने। ठीक है बाबा जान, मैं तब तक फ्रेश हो जाऊँ। सयाम तुम भी चलोगी? नहीं, आप सब जाए, मैं और एराज खान घर में ही रहेंगे बेजी के साथ। ओके बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। हसाम कितनी ही देर टिकटिकी बांधे अरसाम को देखता जा रहा था। बेटा, ये आपको पहचानने की कोशिश कर रहा है, इसकी याददाश्त पर काफ़ी असर पड़ा है। अरसाम बाइक को मिलकर रोने लगा। बारी बारी सब घर वालों को देखने के बाद दरवाजे की सिमत देखने लगा। ईमान ने नोट किया जैसे हसाम भाई किसी और का इंतज़ार कर रहे हों। हसाम भाई क्या किसी और को देखना चाह रहे हैं? हसाम ने खामोशी से आंखें बंद की और आंसू आंखों से बाहर आ गए। बोले क्या हो? हसाम ने खामोशी से आंखें बंद की और आंसू आंखों से बाहर आ गए। डॉक्टर साहब, क्या हम हसाम को लेकर घर जा सकते हैं? जी जी, क्यों नहीं। हाशिम खान, आज से आपको छुट्टी दे दी गई है, आप जा सकते हैं, लेकिन ख्याल रहे कि कोई भी ज़हनी दबाव नहीं होना चाहिए शाम को, वरना तबीयत बिगड़ सकती है। जी डॉक्टर साहब। हसाम को घर आए हुए हफ्ते से ज़्यादा गुजर गया था, लेकिन अभी तक वो किसी से भी नॉर्मल अंदाज में बात नहीं कर रहा था। ईमान जो अपनी बहन की जिद कम करने के लिए शाम के कमरे में आई थी और हसाम भी साथ ही था। और सामने हसाम को व्हीलचेयर पर बैठाकर बाहर लॉन में ले आया, जहाँ सयाम अपने बेटे को लेकर बैठी थी। हसाम अचानक सयाम को अपने सामने पाकर बोल उठा, सयाम, और इसकी गोद में बच्चे को देखकर हैरान हो गया। हसाम ने अपने दोनों हाथ छोड़ दिए और सयाम के कदमों में गिर गया। मुझे माफ़ कर दो सयाम। सयाम जो बचपन से हसाम से मोहब्बत करती आई थी, वो चाहकर भी इससे मुँह ना मोड़ पाई। कैसी बातें कर रहे हैं आप हसाम? आप मेरे शौहर हैं, मुझे शर्मिंदा मत करें। ये देखिए, अल्लाह ने हमें प्यारा सा चाँद सा बेटा अता किया है। बाकी सब घर वाले हमें लेके बाकी सब घर वाले लॉन में आ गए। सयाम ने आगे बढ़कर हसाम को उठाया और कुर्सी पर बैठा दिया। हसाम दीवाना मारा अपने बेटे को चूम रहा था और सब घर वाले अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे। और फिर बोले भी अजीब बेजी बोली कि क्या बेटा हसाम बेटा, रिश्ता तुम्हारा बेशक सयाम के साथ शरई तौर पर जायज़ था, लेकिन मिलने का तरीका बिल्कुल गलत था, किसी के इल्म में लाए बगैर। सोचो, अगर ईमान और अरसाम गवाह ना होते तो सयाम पर कौन यकीन करता, और सयाम तो खुद को ख़त्म कर देती। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि तुम्हारे दादा ने बचपन में ही तुम्हारा झुकाव सयाम की तरफ देखते हुए तुम्हारा निकाह सयाम से कर दिया था, वरना तो तुम बहुत बड़े गुनाह का इर्तिकाब कर लेते। मुझे माफ़ कर दिए बेजी, मैं शर्मिंदा हूँ, मेरी वजह से सयाम को इतनी तकलीफ़ उठानी पड़ी। हसाम ने आगे बढ़कर सयाम को गले से लगा लिया और अपने बेटे राज खान को भी। आज अल्लाह ने सयाम की सुन ली थी। रात
ایمان جب اپنے کمرے میں آئی تو ارسام خان کو دیکھ کر حیران ہی ہو گئی۔ وہ بھی شرٹ کے لیٹا ہوا تھا۔ ارسام نے آگے بڑھ کر ایمان کو اپنے ساتھ بیڈ پہ گرا لیا اور دیوانہ وار اس پر اپنی شدتیں لٹانے لگا۔ ایمان بھی آج خود کو ارسام کے حوالے کر چکی تھی۔ ایمان جی مجھے بھی آپ جلدی سے خوشخبری سنا دو، میں بھی بابا بننا چاہتا ہوں، اللہ نے چاہا تو ضرور آپ جلد ہی یہ خوشخبری سنیں گے۔ ایمان نے خود کو ارسام کے سینے میں چھپا لیا۔ سچ کہا ہے اللہ نے، میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، تم نے مجھے پہن لیا، میں نے تمہیں پہن لیا۔ دوسری طرف سیام اور ارسام بھی اپنے کمرے میں بیڈ پر درمیان میں اپنے بیٹے کو لٹا کر بے تحاشا خوش تھے۔ آج سیام مکمل ہو چکی تھی۔ سامنے اپنے بچے اور سیام کے گرد اپنا حصار باندھ لیا تھا۔ سب بہت خوش تھے۔ تو میری پیاری بہنوں، یہ تھا میرا آج کا چھوٹا سا ناول۔ امید ہے آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ میرے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شکریہ، اور میرے چینل کی باقی تمام ویڈیوز کو بھی پروموٹ کریں۔ مجھے آپ کا تعاون چاہیے، اور میں کوشش کروں گی کہ آئندہ بھی میں اسی طرح ویڈیو اپلوڈ کروں، نہ کہ میں ڈائجسٹ سے کروں۔ اگر آپ میری اس ویڈیو کو پروموٹ کریں گے تو آئندہ بھی انشاءاللہ تعالی میں اسی طرح ویڈیو کو اپلوڈ کروں گی اور اچھے ناول اپلوڈ کروں گی۔ اور کیپ سپورٹ می۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ نیکسٹ ناول کا انتظار کیجیے۔ اللہ حافظ۔